ICICI Foundation, Shri Manohar Puranik sir, Financial Education Consultant with ICICI Foundation. I welcome you, sir, on this platform. We have Dean of Faculty of Management with us, Dr. Neha Mathur, madam. Welcome you, ma'am. And we also have Dean of Faculty of Commerce from Rabindranath Tagore University, Dr. Deepti Maheshwari, ma'am. So I welcome all the deans and Shri Puranik sir on this platform. To start with this session, I request Dr. Deepti Maheshwari, ma'am, to kindly address all the gathering and invite our guests. So over to you, ma'am. Thank you, Shruti sir. Good afternoon to today's speaker, Shri Manohar Puranik sir, and Shruti sir, and Dean, Faculty of Management, HOD Commerce and HOD Management. On the behalf of Rabindranath Tagore University, I welcomes you all today's webinar on financial literacy, jointly organized by Training and Placement Department and Faculty of Commerce and Management. First of all, I am thankful to ICICI Foundation for this opportunity to organize this type of webinar in our campus, and thanks to Shruti sir also for coordinate this webinar. And this webinar is definitely useful to all participants. Nowadays, the situation is very critical, and during the pandemic situation, you have all seen the lots of problems if because of money crunch. So financial literacy is the helpful to all of you for upcoming any type of problems in your life. So definitely you can, if you will invest money in a systematic way, so then you will definitely solve out your problem related with the finance. सो इसके ऊपर जो सर आज आप लोगों को बताएंगे, प्लीज मेरी ये सारे पार्टिसिपेंट, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट और कॉमर्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो इट्स अ हेल्पफुल, और आप सारे बच्चे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में औरों को भी अवेयर करेंगे, जिससे कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आए और ये फ्रूटफुल हो हमारे यूथ के लिए भी, प्लस हमारे यहाँ पर जो और एडल्ट्स हैं जिनको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसे और अच्छे से दे पाएं. बिफोर आई वुड लाइक टू इनवाइट सर, with the due permission of sir, I want to share the credentials of Manohar Puranik sir. Sure, ma'am. Go ahead. Thank you, sir. Shri Manohar Puranik sir, financial educator, education consultant with ICICI Foundation for Inclusive Growth, Vadodara since 2017. Spreading financial literacy among high school, colleges, students, teachers, faculties, workers, and corporate employees through classroom and online sessions, having conducted more than 200 such sessions, both classroom and online. He has done MSc in mathematics, more than 40 years experience in banking industry. Sir is retired as a chief manager from State Bank of India. Wide experience in the field of branch management, credit analysis, international banking, small business finance, housing and auto finance, and audit functions, etc. Held overseas assignments at State Bank of India, Los Angeles, USA as credit in sir account. This is the very, we all are very fortunate to, sir, today sir will address all of us. Thank you, sir. Please start the session. Thank you, sir. Thank you, Deepti ma'am, for this nice introduction. As rightly said by her, we have to share this awareness. तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको दूसरों को भी बताना है ताकि सभी लोग इसकी जानकारी का उपयोग कर सकें. So, if you find permission, shall I begin the session? On behalf of ICICI Foundation for Inclusive Growth, I welcome all the participants, all the Dean HODs, all the team members of Rabindranath Tagore Vishwavidyalaya, Bhopal. It's my privilege to address all of you on this subject, financial literacy. I will be sharing my experience with all of you. I hope you'll be benefited from that. So, today's topic is basic financial literacy, understanding personal finance. So, we all know that because money matters, so financial literacy is very important. पैसे का बहुत महत्व है.
तो अगर आपके पास आर्थिक ज्ञान नहीं होगा, आर्थिक जानकारी नहीं होगी, तो हो सकता है आपको कई प्रकार की दिक्कतें हो। इसलिए आज का ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत आर्थिक जानकारी प्राप्त करने का, समझने का। तो आज का विषय क्या है, आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज टुडेज एजेंडा? टुडेज एजेंडा इज पर्सनल फाइनेंस, which is slightly different, which is much different from business or corporate finance. You will be studying business and corporate finance, where there are a lot of things like balance sheet, profit and loss account, and various ratios, current ratio, debt equity ratio, all those things are there. But in case of personal finance, it is you have to manage the personal finance. In case of business or corporate finance, there are a lot of people involved in that. There will be accountant, there will be chartered accountant, there will be financial manager, finance manager, chief financial officer. They will be managing the business और corporate finance. फिर जब अपने खुद के व्यक्तिगत आर्थिक आयोजन की बात आती है, तो ये हमें खुद करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसकी अच्छी जानकारी रखें। तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम जानेंगे, we'll understand savings, deposit, investment. Then we'll understand about borrowings and loans. Then protection and security. So to protect your money, your wealth, and also your life. So insurance and avoiding financial fraud. Then you have to transfer your wealth to heirs. आपके पास जो पैसा है, आपके अगली पीढ़ी को भी देना है, उसके लिए नॉमिनेशन, विल और एस्टेट प्लानिंग जरूरी है। टैक्स प्लानिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, बट इट इज नॉट कवर्ड टुडे एजेंडा। तो आज हम सेविंग्स, बोरोइंग और इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे अवॉइड करना है वो जानेंगे, एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू हेयर, नॉमिनेशन वगैरह। सो फाइनेंशियल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल? हर एक आदमी के जो जीवन में आर्थिक जो योजना है उसके 3 भाग हम बांट सकते हैं, टीनेजर और यंग, अप टू 20 to 25 years. There is no financial activity. You are dependent on your parents and guardians. Hardly you will get some pocket money. You will only spend. You will not manage. At the most, you can keep some money spare for the next week or so, or for going for a movie. But there is no financial activity. The important activity will start in the youth and adult stage. That is 20-25 years to 60-65 years. That is the full of activity during this period. You will be earning from your salary or from your business. You will be spending, you are buying various things. You will saving also, doing investment for your future requirement. You will save the money. You will also borrow loans, because for buying certain things you need to borrow. You need to take a loan. Then you make future planning. आपके भविष्य के लिए भी आप नियोजन करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग भी जरूरी है, जो कि सारा all this activity take place during this period, which will be beginning for you. You will be just studying. So after your completion of your education, when you start earning, once you get job, all this activity will start. The last stage will be senior citizen, 60 or 65 years onward. There will be no activity, limited earning will be there, spending on living and medical expenses will be there, and जो बचत की है उसको इकट्ठा करके उसका उपयोग करना है और फायदा उठाना है, रिपींग द बेनिफिट्स। जो भी हमने मतलब 60 साल की उम्र तक कमाया है उसका उपयोग करना है। ये सारे अलग अलग स्टेजेस है हमारे लाइफ के। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 20-25 साल से 60 से 65 साल का है, जब आप कमाई करते हैं तो पैसा आता है आपके पास, तो उस समय आपको फाइनेंशियल प्लानिंग मोर इम्पोर्टेंट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, जो पहला सब्जेक्ट है वो है दैट इज सेविंग्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स क्या होता है, व्हाट इज सेविंग्स? तो इफ यू डिफाइन द सेविंग, अगर आपको इसकी परिभाषा जानना है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। दैट इज द इट कैन बी डिफाइंड, और अदरवाइज वी कैन से द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज सेविंग। खर्चा करने के बाद आमदनी में से जो पैसा बचता है उसको बचत कहा जाता है, या आमदनी में से खर्चा होने के बाद जो बचा, द इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ये तो फार्मूला हुआ, ये परिभाषा हुई, but whether this is the correct method or not, we'll see. So how do you do the saving, and what is this important? Why it is important to save? So importance of saving, we need the money for our emergencies, like unexpected expenses like illness, accident, to meet contingency, and for lean period when we are not able to earn. The best example, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है जब कोविड-19 या पेंडेमिक चालू हुआ, तो कई लोगों की नौकरी चली गई या आमदनी कम हो गई, या बिजनेस है तो उसकी आवक आमदनी कम हो गई। सो देयर आर लॉस ऑफ इनकम इज देयर और इनकम इज रिड्यूस। अगर उन लोगों ने सेविंग की होगी या अच्छी तरह से बचत की होगी, तो आई थिंक दे वुड नॉट हैव फेस द डिफिकल्टी। फ्यूचर नीड्स, विद सेविंग्स इन द फ्यूचर यू कैन बाय व्हाट यू कैन नॉट बाय टुडे फ्रॉम रेगुलर इनकम, लाइक कार यू कैन नॉट बाय फ्रॉम रेगुलर इनकम, योर सेविंग यू कैन बाय।
For higher education of your children, also you need the money. And larger expenses also you need the money, you need the saving, like purchasing a house, marriage of your children, their higher studies, etc. So for that purpose, the saving is very important. Then saving is also needed for your old age, because once you are old, the income will not be there, and you have to depend on the savings what you have done during your earning, during your period of earning. Avoiding impulsive spending. If you have the saving and you have a habit of saving and you don't have the cash in hand, then you may not spend it impulsively on things which you don't need necessarily. अगर आवश्यक चीजों की खर्चे करने के बाद अगर से आपके पास पैसा नहीं होगा तो अनावश्यक चीजें आप नहीं खरीदेंगे, तो आप बचत की आदत अगर आपको होगी तो अनावश्यक खर्चों से आप बच सकेंगे. तो ये बचत का महत्व है, सभी लोगों के लिए बचत करना बहुत जरूरी है. अब एक और बात बता देता हूँ, इफ यू डोंट बिलीव इन सेविंग, अगर आपका बचत में विश्वास नहीं है और बचत नहीं करना चाहते हैं, तो जो आगे के मेरे जो पीपीटी है, आगे के जो साइट्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप विश्वास करते हैं कि बचत करना है तो हम आगे की स्लाइड के ऊपर बात करेंगे. तो बचत करना बहुत जरूरी है. इसके लिए कुछ टिप्स हैं कैसे बचत करेंगे, हाउ टू सेव. तो बजटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सेविंग. अगर आप बजट करके बचत करेंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा फायदा होगा. फर्स्ट यू हैव टू नीड सेग्रीगेट ऑल योर इनकम एंड एक्सपेंसेस. आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है. इनकम मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. मे बी इफ यू आर डूइंग जॉब द सैलरी इज द मेन इनकम, बट इफ यू ऑलरेडी हैव सम हाउस और शॉप यू रेंटेड इट, देयर विल बी रेंट इनकम. You have some money deposited somewhere in bank or mutual fund, you have some income earning from that, like interest or dividend earning from that. If you have some factory or business, there will be earning from that. So all those sources will be there. From that you will get the income. And expenses you can categorize depending on very important, least important. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ग्रॉसरी, आपकी खाने का कैसा खर्चा, कपड़े का खर्चा, जो बिल्स आते हैं, लाइट का बिल है, then your mobile bill and other bills you have to pay. So there are important things, but there are less important things like or least important things like going to movie, going to a hotel, or buying the valuables, or buying a costly mobile. Or those things are you can avoid. So try to avoid those expenses if you have less income. So try to figure out in which ways you can curtail expenses. कैसे आप अपने खर्चों को बचा सकते हैं, कैसे उसको कम कर से, ये आपको जानना है ताकि आपकी बचत ज़्यादा हो. इंश्योर दैट योर इनकम एक्सीड द एक्सपेंसेस विद एज वाइडर मार्जिन एज पॉसिबल. तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर हो अगर आपकी आमदनी और खर्चे में, तो आपकी बचत ज़्यादा होगी और आपको फायदा होगा और आप ज़्यादा बचत कर पाएंगे. ये जो सरप्लस फंड बचता है सारे खर्चों के बाद, जिसको हम सेविंग कहते हैं. लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देने की बात है कि आई टोल्ड यू दैट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, but that is not the correct formula. Correct formula is income minus saving is equal to expenses. तो पहले आप बचत करिए, उसके बाद में आप खर्चा करिए. तो फार्मूला इज दैट as soon as you get the income, you save the money, maybe 10%, 20%, 30%, whatever you can save. जो लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, जो लोग आर्थिक सलाह देते हैं, वो कहते हैं कि आपको आपके आमदनी का 30% बचाना चाहिए. सभी लोगों को ये संभव नहीं है, लेकिन जिसको जितना संभव है उतना 10%, 15%, 20% आप बचा सकते हैं और उसके बाद में आप खर्चा करिए. अगर आपने पहला खर्चा करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि मंथ के अंत में आपके पास बहुत कम पैसा बचे, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000 रुपये बचे. लेकिन अगर आपको पहले से आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे बचत करना है और आपने 5000, 10,000 रुपये बचा लिए हैं और उसके बाद आपने खर्चा शुरू किया है, आपको पता है कि आपको खर्चा करने के लिए कितना पैसा है, उसी में से आप खर्चा करेंगे. तो आप जो है अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, जो आवश्यक नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है, ऐसे खर्चे आप नहीं करेंगे तो आपकी बचत निश्चित रहेगी. इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर आपने एक बार 5,000 रुपये बचा लिए तो आपकी निश्चित बचत है. अगर आपने खर्चा पहले किया और बचत बाद में होने वाली है तो हो सकता है वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो निश्चित नहीं है. इट इज़ नॉट एश्योर्ड, इट इज़ नॉट रेगुलर. So if you save early in the beginning itself, you have assured saving. So it is only after you assure saving that you can think about investment. तो इन्वेस्टमेंट का बात आती है, जो निवेश करने की बात आती है, वो आपके सेविंग में से आती है, आपकी बचत से आती है. आपकी नियमित आवक से या रेगुलर इनकम से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. अब इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने जो बचत की है, तो बचत तो हर महीने अगर आपने 5,000 रुपये बचाए हैं तो एक साल में आपके पास 60,000 रुपये हो गए. इतना सारा पैसा आप अगर ऐसे ही रखेंगे तो उसके ऊपर कम ब्याज मिलेगा, उसको आपको ऐसी जगह निवेश करना पड़ेगा जिससे आपको ज़्यादा आमदनी हो. तो इन्वेस्टमेंट इज बाइंग एन एसेट
or investing in a certain asset to generate returns from it over a period of time while also taking care of risk and volatility. तो अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्गर पीरियड में आपको इसका फायदा होता है। 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में फायदा होगा, 2 महीने या 3 महीने में फायदा नहीं होगा। और इसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि देयर बी सम रिस्क एंड देयर बी सम वोलेटिलिटी। रिस्क का मतलब ये है कि इसमें जोखिम है, आपका पैसे की कीमत कम हो सकती है, बढ़ सकती है, आपका पैसा डूब सकता है या वैल्यू कम हो सकती है। वोलेटिलिटी मतलब कि वही है कि इसमें कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, तो देयर इज रिस्क एंड वोलेटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय गोल्ड, अगर आपने सोना खरीदा, सोने के जवाहरात खरीदे, दागिने खरीदे, हीरे के जवाहरात खरीदे, एंड कीप इट फॉर ईयर्स विद एन एक्सपेक्टेशन टू इंक्रीज इन इट्स वैल्यू विद एन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है 2 साल बाद या 5 साल बाद, और इसके लिए आपने ये खरीदे हैं, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट है। बाइंग म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर्स, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा आर वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं, पैसा रोक सकते हैं। और हर चीज़ में इनमें आप रोकेंगे तो आपको क्या क्या ध्यान देना है तो आगे देखेंगे। यू टू सी देयर इज अ रिस्क, देयर इज वोलेटिलिटी, देयर में बी लिक्विडिटी और लेस लिक्विडिटी, मे नॉट बी good liquid. So we have to see all those things. The prime focus should be beating the inflation rate with the widest possible margin. ये इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई की दर अगर अभी 5% है, इफ यू इन्वेस्ट समवेयर इन द शेयर्स और फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स और गोल्ड ज्वेलरी, देन यू टू सी आपको जो पैसा वापस मिलेगा दैट बीट्स द इन्फ्लेशन रेट। आपको महंगाई की दर से ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट द इन्फ्लेशन। ये महंगाई की दर क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है। एज यू कैन सी द मनी कैन नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। आज हम जो चीज़ जितने में खरीद रहे हैं, भविष्य में हम उतने अमाउंट में उतनी चीज़ नहीं खरीद सकते। अगर आज 40,000 रुपये में आप 10 ग्राम सोना ले सकते हैं, तो 2 साल बाद 40,000 रुपये में आप 10 ग्राम सोना नहीं ले सकते, आपको 8 ग्राम सोना ही मिलेगा, 5 ग्राम सोना ही मिलेगा। तो आपकी वैल्यू, आपकी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस विद द टाइम, दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। अभी मान लो 5% या 5.6% इन्फ्लेशन रेट है, तो आपके जो वैल्यू, आपका जो पैसा है उसकी कीमत कम होती जाएगी भविष्य में। तो समथिंग दैट कॉस्ट 1,000 रुपीज 10 years ago विल कॉस्ट मच मोर टुडे। 10 साल पहले 1,000 रुपये में जो चीज़ें हम खरीदते थे, आज वही चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, कॉस्ट 40 रुपीज टुडे एट 5% इन्फ्लेशन। अगर महंगाई की दर 5% है तो 10 साल बाद इसका 65 रुपये हमें लगेगा। हमारे पास अगर 400 रुपये आज सकते हैं, 10 किलो शक्कर हम ले सकते हैं, 40 रुपये का भाव है आज। अगर हम ये पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट दिस 400 रुपीज, देन वी विल 400 रुपीज ओनली आफ्टर 10 years, विल सेम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 10 years, बट द कॉस्ट ऑफ the price of sugar had gone up, so now you can buy only 6 kilograms of sugar after 10. I will stop my video because there will be some difficulty in internet, so I'm not keeping my video on. Hope I will be connected to you. So if you have 400 rupees, after 10 years we will not able to purchase 10 kilograms sugar after 10 years, because we can purchase only 6 grams sugar, because its price has gone up, money is that was same as it is. But if we invest this amount at a 4% interest rate at somewhere, then we have 432 rupees after 10 years. Now we can purchase only 6.6 kg sugar after 10 years. Still we cannot purchase the sugar as we are able to purchase right now. But if you invest this 400 rupees at 8% per annum, now you will have 864 rupees with you. So after 10 years, you can purchase 13 kilogram sugar, or you can purchase 10 kilogram sugar, and there will be a lot of money left with you. So like this, you have to beat the inflation. Remember, whenever you invest somewhere, try to see कि आपकी जो महंगाई की दर है उससे ज़्यादा आपको फायदा होना चाहिए, तो ही आपके पैसे की कीमत बढ़ रही है, उससे फायदा होगा। तो पैसे की कीमत बढ़ रही है, लेकिन सामने महंगाई भी बढ़ रही है। जितना आप आज खरीद सकते थे उतना आप भविष्य में नहीं खरीद पाएंगे, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो कैसा हम इन्वेस्ट करेंगे? यू हैव द सेविंग, अगर आपने बचत की है उसमें से आप निवेश कर सकते हैं। आपके रेगुलर जो आपकी आमदनी है उसमें से आप बचत नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा जमा किया हो तो आप इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि ये पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे आपके 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में नहीं पड़ेगा, आपको कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए राह देखना पड़ेगी। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि योर मनी हैज द इन्वेस्टेड योर मनी हैज इंक्रीज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड यू शैल टू हैव आल्सो पेशेंस। अगर ऐसा लगा कि अरे ये तो वैल्यू कम हो रही है, बेच दिया और 2 दिन बाद फिर से बढ़ गई, आप उसको खरीदेंगे तो आपको और नुकसान हो जाएगा। पेशेंस रख के आपको ध्यान रखना है कि किस जगह हमको फायदा होने वाला है और डिसिप्लिन रखना है। यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड आल्सो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एज पर योर प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, अप टू 2 ईयर्स में भी फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है या NSE वगैरह आपने खरीदे हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मीडियम टर्म जो है 5 साल से 7 साल के लिए है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 साल से आगे या 5 साल से आगे 10 साल तक के लिए, 15 साल के लिए आपने किया है। तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। हम देखेंगे कि कम उम्र में बचत करने का क्या फ़ायदा है, कम उम्र में निवेश करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम जो निवेश करते हैं उसके ऊपर हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ायदा मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप जानते होंगे, हम भी आगे थोड़ा समझेंगे। सो once you start investing, the compounding effect starts appreciating your infused capital, gradually growing it day by day. अगर आपने निवेश किया है उसके ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा आपको मिलेगा, तो आपने जो पैसा जो निवेश किया है वो समय के साथ में बढ़ता जाएगा और आपको इसका फायदा दिखेगा। लेकिन आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हमें 5 फैक्टरों का ध्यान रखना पड़ता है। यू टू फोकस ऑन 5 फैक्टर्स: रिस्क, रिटर्न, टेन्योर, टैक्स एंड लिक्विडिटी। रिस्क क्या होता है? हर जो निवेश हम करते हैं उसमें जोखिम होती है। एवरी इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। देयर में बी रिस्क ऑफ लूजिंग द मनी, देयर में बी रिस्क ऑफ गेटिंग इट्स वैल्यू कमिंग डाउन और मे बी इट्स वैल्यू बिकमिंग जीरो। रिटर्न मीन्स हमें कितना पैसा वापस मिलेगा। इफ यू कीप मनी इन द सेविंग अकाउंट यू विल गेट 3% और 4% इंटरेस्ट. That is a return. If you keep in fixed deposit, you will get 6% return. But if you buy a house or a real estate property, the return you cannot imagine. It may be very high. You may buy some property for 10 lakh, and after 5 years it may cost 50 lakh, depending on the market, depending on the area. If you buy some 10 gram of gold today, its value may go up very high. So that is called return. Tenure. For how much period you have to invest? कितने समय के लिए हमें पैसा रखना पड़ेगा। अगर अकाउंट में रखा है तो आपको हर 3 महीने ब्याज मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो हर साल ब्याज मिलेगा। लेकिन आपने मकान खरीदा है तो यू कैन नॉट सेल इट एवरी ईयर। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने 10 लाख का आज खरीदा है, साल भर बाद 12 लाख में बेच दूंगा, उसमें से कुछ लूंगा, फिर अगले साल उसको 15 लाख में बेचूंगा। So that is not possible in some of the investments. So tenure is very important. Certain investment you have to keep for longer period. Then tax liability. All the investment are subject to some tax liability. So you have to see कि इसमें मुझे कितना टैक्स लगेगा। अगर मैंने मकान में लगाया है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज आ रहा है तो उसमें इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। सेविंग से ब्याज आ रहा है तो उसमें भी टैक्स लगेगा। तो there are certain investment which are tax free. So if you do not want to pay tax, you can invest in that. Or if you are investing somewhere else, then you are ready to pay the tax. Liquidity is most important. Liquidity means आपको पैसा कब वापस मिलेगा। अगर आपने मकान में पैसा लगाया है तो आप इमीडिएटली आज का मकान नहीं बेच सकते। It will take 6 months to 1 year to sell the house. अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो आप कभी भी जाकर पैसा निकाल सकते हैं। That is called the most liquid fund. अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है तो आप कभी भी जाकर बैंक में से उसके सामने लोन ले सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट तुड़वा के पैसा ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जब आपको पैसे की जरूरत है। जैसे कि हमने देखा पेंडेमिक टाइम में, अगर आपके पास पैसा नहीं हो, सब कुछ बंद है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आप मकान तो बेच नहीं सकते, आप सोना बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो ATM चालू है, बैंक चालू है, तो यू कैन गो एंड विड्रॉ द मनी। अगर फिक्स डिपॉजिट में है तो भी आप बैंक में जाके पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है किसी प्रॉपर्टी में या गोल्ड में और ज्वेलरी की दुकान बंद है, तो आप उसको बेच नहीं सकते। और प्रॉपर्टी तो आप बिल्कुल नहीं बेच सकते क्योंकि nobody is coming out in the market. So liquidity is most important. Generally they say that you have to keep 6 months your income in the liquid fund that you don't have any difficulty. Even nowadays job market is also very volatile, very flexible.
if you are leaving one job and joining another company, you should have 6 months income as a saving for that transition period. क्या क्या ऑप्शंस है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के? तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस लाइक बैंक, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, एनएससी, केवीपी इन फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र इन पोस्ट ऑफिस, कंपनी डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड opened in the bank as well as in the post office, government bonds, shares and stocks, mutual fund, real estate, gold. ये सारे निवेश करने के अलग अलग तरीके हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके प्लानिंग के अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क लेवल किसका कम है? सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ का कम है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें आपका पैसा डूब नहीं सकता है, आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा ब्याज के साथ। मीडियम रिस्क जो है वो गोल्ड और रियल एस्टेट में है। यहाँ पर रिस्क कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है आपके सोने के जो दागिने हैं, जो जवाहरात है हीरे के, वो चोरी हो सकते हैं या उसकी कीमत कम हो सकती है। क्या हो सकता है कि आप दिखाने जाए, बेचने जाए, तो वो बोलेगा कि आपने जब सोना खरीदा था ये तो शुद्ध सोना नहीं है, ये 18 कैरेट का नहीं है, 22 कैरेट का नहीं है, 24 कैरेट का नहीं है, और आपको उतने पैसे नहीं मिले। रियल एस्टेट में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है यहाँ पर वैल्यू कम हो सकती है, उस डेवलपमेंट बंद हो जाए तो वैल्यू कम हो सकती है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि दे आर वेरी हाई रिस्की, वैल्यू में गो टू जीरो इटसेल्फ और वैल्यू में कम डाउन, सो वेरी रिस्की। प्लीज don't invest in share unless you have good knowledge and you have proper guidance of somebody, so it is very risky. Liquidity, as I told you, real estate is very low liquid, you cannot sell the property immediately, but FDs and PP and gold you can sell in a short time. Saving account is most liquid, highly liquid account, you can withdraw anytime 24/7 by ATM, so they are very liquid assets. So all those things we have seen about the investment. Now the best investment is mutual fund. Those who investment, those who are beginning in the life or just try to making the investment, mutual fund is best for them. Mutual fund is a mechanism that pools the savings of a number of investors who share a common financial goals. Those people who come together, invest their small savings in a mutual fund for a common goal. So everybody has a common goal of earning from your money, and they have smaller savings, so they can pool their money. ये पैसा हम कहाँ देते हैं? म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, इसको सारे लोग पैसा देते हैं, छोटे इन्वेस्टर है वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके देते हैं ताकि उन्हें फायदा हो। द मनी दस कलेक्टेड इज एन इन्वेस्टेड बाय द फंड मैनेजर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। देयर इज अ फंड मैनेजर, दिस इज म्यूचुअल फंड कंपनी हु अपॉइंट्स अ फंड मैनेजर हु इन्वेस्ट दिस फंड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो अपना इकट्ठा करते हैं पैसा और फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड को देते हैं, जो कि सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिटर्न जनरेट होता है, जो कि इन्वेस्टर को पास ऑन होता है। वेरी सिंपल फार्मूला, यू पुल योर मनी, गिव टू फंड मैनेजर, ही इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी, इट जनरेट्स द रिटर्न एंड द रिटर्न इज पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर। सो बट फंड मैनेजर कौन होता है? व्हिच इज हाईली क्वालिफाइड, इज बैक्ड बाय द, जो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, करते हैं फंड मैनेजर को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा निकालना है, उसी कंपनी अच्छा कर रही है, तो जिससे फायदा होता है कि हमारा पैसा सिक्योर रहता है और देरी रिस्क नहीं होती है। और वो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग पैसा लगते हैं ताकि पैसा कभी डूबे नहीं और फायदा सही तरीके से हो। एक ध्यान रखने की बात है कि म्यूचुअल गिव द मार्केट नॉट रिटर्न, मतलब आपको जो पैसा वापस मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, वो एश्योर्ड नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में आपको पता है 6% ब्याज मिलेगा, सेविंग अकाउंट में 3% मिलेगा, लेकिन पता नहीं कि 8% मिलेगा, 9% मिलेगा। मार्केट अगर आप होगा तो ज्यादा मिलेगा, इन लॉन्ग टर्म। हाउएवर लॉन्ग टर्म मार्केट रिटर्न्स हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म बेटर देन द अदर एश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक ध्यान देने की बात है कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर समय हम निवेश करें तो ये मार्केट रिटर्न वो हमें ज्यादा होगा रिटर्न प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब सेविंग या फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा पैसा हमको मिल सकता है ये म्यूचुअल फंड के अंदर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज प्रोफेशनली मैनेज, मीन्स देयर आर द प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल
who are managing the funds is backed by the research team. So always they are conducting research and they are deciding in which company to invest and where not to invest. Easy liquidity है, आपको कभी भी पैसा चाहिए तो you can redeem it online and 2 or 3 दिन में depending on the holiday or working days you'll get back the money in your bank account. तो आपको पैसा तुरंत 2 या 3 दिन में वापस मिल सकता है. रिडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, आपकी जो रिस्क है, आपका जो निवेश किया है वो अलग अलग जगह किया हुआ है, तो देयर इज नो रिस्क और देयर इज अ लिटिल रिस्क because money is diversified in various type of assets. Return potential is higher because it is depending on the market. So market goes up, you will get higher return. Well regulated and investor protection is there. There is a control of MP, SEBI. They are controlling the mutual fund, so it is regulated properly. The cost of operating is very low because there is generally no cost involved in mutual fund investments, or even if it is involved, it is very less. There is a tax benefit, right? Nowadays, at present, whatever income you get from mutual fund is not subject to tax. Otherwise, the dividend income or interest income is subject to tax. Then administration is very convenient. You can do it online, you can do it offline also. You can go to the bank and give a check, or you can go to the mutual fund and give a check, or you can do it online. Internet से कर सकते हैं, mobile banking से कर सकते हैं, net banking से कर सकते हैं. Very convenient administration there. As well as for investing, for getting money back also you can use the internet or mobile banking. Flexibility of investment is there. You can invest 100 rupees, 200, 500,000. At any time you can do the investment every day, every month, every fortnight. As in when you have got the money, you can do the investment. So there is a good type of investment in the mutual fund which is known as SIP. It is full form is Systematic Investment Plan or SIP. It is very useful for investing in mutual fund. Those who are beginners or have a smaller amount, or those want to have a regular habit of saving, they can use this method. You can invest a fixed or variable amount at regular intervals in an investment scheme. What are the features of SIP? It is perfect for first-time retail investor, beginners, first-time investors in the mutual fund. It inculcates the discipline of investing regularly. आप एक डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको एक आदत पड़ती है बचाने की. Ease of investing is there. It is a very automated process. If you have a standard instruction every day or every week, money will grow from your saving account. There is a flexibility. You can invest small amount, you can invest higher amount. Suppose आपको कोई बोनस मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो आप ज़्यादा पैसा भी उसमें निवेश कर सकते हैं. अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं, आपने कोई मकान बेचा और एक साथ पैसा आ गया, तो उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो देयर इज अ ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इज देयर. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, देयर इज नो वरीज अबाउट मार्केट अप्स एंड डाउन्स. तो आपने जो आज खरीदा है, तो आज अगर रेट डिफरेंट है तो वो एवरेज हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम अगेन यू विल बाय, सो एट दैट टाइम रेट विल बी डिफरेंट, so there will be average price will apply. Power of compounding effect will be there, that we will see subsequently what is the benefit of compounding effect. And though return is not assured, but it is generally higher than the bank's saving and recurring accounts for a longer period. अगर ज़्यादा समय के लिए आप निवेश करेंगे तो बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट से या बैंक के फिक्स डिपॉजिट से हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा फायदा हो. इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, देयर इज नो एग्जिट लोड. सो वेरी बेनिफिट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड by SIP, by using systematic investment plan. Now we'll see power of compounding, which is very important. You might have learned your mathematics or in commerce also कि दो तरीके होते हैं ब्याज गिनने के. There are two ways of paying interest, maybe simple interest और compound interest. साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज. साधारण ब्याज में क्या होता है, आपको केवल मूल रकम के ऊपर, आपके मूल निवेश के ऊपर ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है. कंपाउंडिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इन कंपाउंडिंग द बेनिफिट इज दैट इंटरेस्ट अर्न इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड री इन्वेस्टेड, देयरफॉर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. आपका जो ब्याज है वो पुनः निवेश किया जाता है. पुनः निवेश करने से आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ताकि आपके मूल रकम और ब्याज के साथ दोनों राशि पर आपको ब्याज मिलता है. And when this compounding effect takes place for a long duration, the return becomes much higher as compared to simple interest. अगर लंबे समय तक आप चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करते हैं तो साधारण ब्याज से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है. आगे के हमारे तालिका में देखेंगे कि किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा होता है. In long term, huge benefits can accrue from compounding if the money is allowed to remain invested. अगर ज़्यादा समय के लिए, लंबे समय तक अगर आप
ये निवेश करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्ट का परिणाम बहुत अच्छा होता है, जो आगे की तालिका में आगे के थीम के ऊपर हम देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। अगर एक व्यक्ति 8% से सिप के अंदर इन्वेस्ट करता है, 8% इनकम इफ यू इन्वेस्ट टिल द एज ऑफ 60, हाउ गेट्स बेनिफिटेड। तो इसमें तो अलग अलग तालिकाएं दी गई है। विल टेक सम एग्जांपल। सपोज यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 25, so till the age of 60 you have 35 years, that is 420 months. If you invest 1000 rupees every month, the total amount saved will be 4,20,000. So you have saved only 4,20,000 for last 35 years. But how much amount will get? Will get 22,79,000. That is interest amount of 18,59,000 will be interest earning will be there. But suppose you start the investing at a 35 years of age, then now you have only 25 years to invest. So now you invest 1,500 rupees every month, and your total amount saved will be 4,20,000. But what return will get? Will get 13,28,000. That will be earning of around 9,12,000 will be your earning. But you are very late and start investing at 50 years of age. Now you have only 10 years. So you have to invest 3,500 rupees every month. Your saving will also be 4,20,000, but you are earning, your return will be 6,42,000 only. That means 2,22,000 is the interest you have got. So if you are late in the investing, your return will be less because there will be only very short time for compound effect to take place. If you are doing it at early age, there will be 35 years to take effect of compounding interest. So your earning will be very high. Your return will be very high. Thus, even though the same total amount of 4,20,000 invested, if you start early, the value of your investment becomes very high. So it is very important to start investing at an early age. So please remember, as early you start investing, your money will grow very rapidly till the age of 60 years. So this compounding effect is very important and it is very beneficial when you are investing. But it will be also very dangerous when we take a loan. We will see in our next slides. Now we'll see the financial planning process. क्या होती है आर्थिक नियोजन, क्या होता है आर्थिक नियोजन की योजना क्या होती है? You have to define financial goals, develop financial plans and strategies to achieve goals. आपको कुछ गोल बनाना है, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है और उसको स्ट्रेटेजी बनाना है गोल अचीव करने के लिए. You have to classify your goals into long term, medium term and short term. Then do goal based investing. लंबे समय का आपको गोल बनाना है, छोटे समय का बनाना है और मीडियम टर्म का बनाना है. तो शॉर्ट टर्म के गोल क्या होते हैं? आफ्टर 2 years आई विल बाय अ स्कूटर और ए कार. मीडियम टर्म क्या होते हैं? आफ्टर 5 years आई विल बाय हाउस. और लॉन्ग टर्म क्या होता है? फ्यूचर में मुझे पेंशन मिलना शुरू होगी या जब मुझे रिटायर हो जाएगा तो मुझे पेंशन कैसे मिलेगी, मुझे आमदनी कैसे होगी. ये सारे लॉन्ग टर्म गोल हैं. You should have clarity whether you want to have income or capital growth. सपोज आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है, हर महीने रेगुलर इनको आ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम की हर महीने जरूरत नहीं है. सो यू कैन गो फॉर कैपिटल ग्रोथ, ताकि आपका पैसा लंबे समय पर आपको जरूरत हो तो ज़्यादा पैसा मिले. लेकिन सपोज यू आर लेस इनकम, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर मंथली एक्सपेंसेस फ्रॉम योर रेगुलर इनकम, योर सैलरी और अदर इनकम, लेकिन यू गो फॉर इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको हर महीने एक्स्ट्रा इनकम भी आती रहे. So you should have clarity. Understand your risk appetite. When you are young, you can take a lot of risk. आप जब युवा है तब आप ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं. आपको अगर $1,00,000-2 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा. लेकिन हमारे जैसे लोगों को अगर $1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया तो हमारी जो सेविंग है उसी में से पैसा चला गया, तो we will feel very pinch. So we cannot take a risk. But in young age you can take a risk and you can invest in risky assets. I don't say that you always invest in risky asset, but you can take some risk and invest in shares and other mutual funds and other investments, and you can take a risk. So understand your risk appetite. How much money you can keep on risk, you can take on risk. Do asset allocation, diversifying different type of asset. आपको पता है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने, अगर बास्केट टूट गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे. तो रिमेंबर यू हैव टू डाइवर्सिफाई एसेट्स. अलग अलग प्रकार के निवेश, अलग अलग प्रकार के एसेट्स में आपको निवेश करना है, ताकि अगर एक जगह नुकसान होता है दूसरी जगह फायदा हो जाए. आपके जो इन्वेस्ट किया है महीने में आपको इवेल्यूएट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, ताकि यू कैन मॉनिटर इट एंड डू नॉट चार्ज योर इन्वेस्टमेंट टू मच.
बार बार आपको उसको चेंज नहीं करना है, वंस इन ईयर आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको ऐसा लगता है कि इस जगह फायदा नहीं है या ये रिस्क ज़्यादा रिस्की है तो आप चेंज कर सकते हैं। रिवाइज योर गोल्स एज सिचुएशन चेंजेस, बिकॉज इन योर लाइफ lot of time your situation changes. Right now you are single, आपका विवाह नहीं हुआ है, after some time you get, so you have persons, you have to manage 2 persons. After some time you have a kid, so there are 3 or more persons you have to manage for that. After that when your kids grow up, you have to look after their education also. So situation changes from time to time. You have to change your you have to balance your portfolio once in a year and change as per the situation. Automate the process of saving and investment and start early. अगर ऑटोमेटिकली ये सब हो रहा होगा तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप ये कर सकते हो। और ये जितना अर्ली आप करेंगे, जितना कम उम्र में आप करेंगे उतना अच्छा है। जो अगला जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव द बेनिफिट्स ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एट्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फायदा है, इससे आपकी आमदनी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। एक एट्थ वंडर माना जाता है विश्व का, फिर भी ध्यान रखना है कि ये जब आप लोन लेते हैं तब बहुत डेंजरस होता है। अब हम जानेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जो लोग 2004 के बाद कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, उन लोगों को या प्राइवेट नौकरी हो, किसी प्रकार की पेंशन सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है। 2004 से पूर्व जो नौकरी ज्वाइन की है उन लोगों को पेंशन मिल रही है, मिल सकेगी रिटायरमेंट के बाद। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना चालू की जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 2004 में सभी सरकारी एम्प्लॉयज के लिए चालू की गई थी और 2009 में इसको सभी के लिए चालू खोल दिया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं, अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो भी आप नेशनल पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अलाउ सब्सक्राइबर टू कंट्रीब्यूट रेगुलरली इन ए पेंशन अकाउंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। मतलब अप टू 60 years of age when you are working, you can contribute regularly. On retirement, subscribe can withdraw a part of the corpus in a lump sum and use the remaining corpus to buy an annuity to secure a regular income after the retirement. तो जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो ये आपका जो पेंशन फंड है, जो पेंशन सिस्टम में आपने इन्वेस्ट किया है, ये मैच्योर हो जाता है। उसका जो पैसा है आप लमसम विड्रॉ करके लगाते हैं, जिससे आपको हर महीने रेगुलर इनकम मिलती रही एज ए पेंशन। तो आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर 60 years आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। आपको जो पैसा आप है वो आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट पार्ट ये है कि द मनी इन्वेस्टेड इन द एनपीएस इज मैनेज्ड बाय पीएफआरडीए रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स। So they are professionally qualified and properly qualified. So there is a very less of losing your money. And employees' own contribution is eligible for tax deduction under income tax Act. So if you are investing some money in NPS, you can get some tax. You can claim some deduction in the income tax also while completing your income. It offers 2 type of accounts. There are 2 तरह के अलग-अलग प्रकार के अकाउंट है। Tier 1 मैंडेटरी जो जरूरी के लिए और Tier 2 वॉलंटरी है, आपकी इच्छा हो तो आप उसमें कर सकते हैं। Tier 1 अकाउंट इज ए पेंशन अकाउंट एंड यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी फ्रॉम दिस अकाउंट टिल योर रिटायरमेंट। जब तक आपका रिटायर मतलब 60 साल की उम्र के पहले आप इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। रिटायरमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है पैसा विड्रॉ करने के लिए। Tier 1 का जो पैसा है दैट यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन द एन्युटी, ताकि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। Tier 2 अकाउंट इज वॉलंटरी अकाउंट, आपकी इच्छा पर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये निवेश का खाता है। इसमें से कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं और Tier 2 अकाउंट में से पूरा पैसा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी इच्छा हो और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जाना। हमारे पास जब तक पैसा है सेविंग से हम बैंक में जमा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी हमें जरूरत पड़े। समटाइम्स यू मे आल्सो नीड मनी टू बाय हाउस और बाय कार और बाय two-wheeler or buy mobile phone or buy fridge. Then at time you can approach the bank for taking loan. Banks use kinds of loan to individuals as well as for the business. We are not talking here about the loans to the business or to the factory or to the companies. We are talking about the loans available to individuals. इसके लिए आपको बैंक कौन-कौन से लोन देती है, व्यक्तिगत ऋण कौन-कौन से बैंक में से मिल सकते हैं। शिक्षा ऋण मिल सकता है, एजुकेशन लोन, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं आफ्टर 12th. If somebody is doing engineering or CA or even for MBA, if you are getting admission in a very
high level institution, then the fees is very high. If you cannot afford, your parents cannot afford, then you can take education loan. Personal loan is unsecured loan which is available against your salary or your income tax return, and it is very high interest bearing, and it is a unsecured loan. There is no security you are giving to the bank, but interest rate is high. Loan against deposit or securities. If suppose you have bought some NSC or KVP, or you have bank fixed deposits in the bank, then you can take loan against that. That is your own money, you are taking a loan against that. And when you have spare money, you can repay that, and your security will be free of the bank. Consumer durable loan you can take to buy some household items like fridge, washing machine, or mobile phone, or two-wheeler. Then housing loan you can buy. It is a very important loan. Everybody have to take a housing loan once in his lifetime. Maybe twice or thrice also he can take, depending on the situation. But at least एक बार तो आपको आपके जिंदगी के अंदर एक बार मकान का ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि मकान सबके लिए आवश्यक है. अपना खुद का मकान हो, ये सबका अपना अपना सपना होता है. तो हाउसिंग लोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप यंग एज में हाउसिंग लोन लेंगे तो आपको 30 से लेकर 35 वर्ष तक की EMI आपको मिल सकती है, और EMI का अमाउंट भी कम रहेगा. अगर आप लेट एज में अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 40 या 50 साल की उम्र में, तो आपको 10 साल का या 20 साल का EMI रहेगा. 10 साल के 20 साल तक का लोन मिलेगा, और आपकी EMI ज़्यादा हो सकती है. तो जितना जल्दी हो सके अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे तो आपको EMI कम आएगी, और आपका खुद का मकान होगा. अगर आप खुद आप उसमें रहेंगे तो आपके किराए की बचत होगी, और अगर दूसरों को आप किराए पर देंगे तो किराए की आमदनी भी हो सकती है. मॉर्गेज लोन इज अवेलेबल इफ ऑलरेडी यू हैव सम प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट लाइक ए हाउस और ए शॉप or a office building premises, then you can take a loan against that, and you can use it for any purpose. Car loan or auto loan is available, vehicle loan available to buy two-wheeler or four-wheeler. Gold loan is available when if you already have some gold jewelry, सोने के दागिने आपके पास हैं, तो उनको आप बैंक में गिरवी रखकर उसके सामने लोन ले सकते हैं, और जब पैसा भर देंगे तो आपके पैसे वो आपकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे. Credit card is the most important type of loan which you can use day to day for requirement. You can use it, but it is very dangerous. Please remember, if you are using credit card, please try to repay the dues in full whenever they are due every month. If you keep on prolonging your repayment, the interest will be very high, and you may have to pay a lot of money as interest. So remember, if you are using credit card, please use it in a very disciplined way. Now there are some tips for borrowing before you borrow and once you borrow. So before you borrow, before having a loan, please analyze objectively and determine how much loan you will need and how are you going to repay the loan. अगर आपको कोई ऋण लेना है बैंक से तो जरूर लीजिए, लेकिन निश्चित कीजिए कि आपको किसकी आवश्यकता है क्या, और कितना आपको कितने ऋण की आवश्यकता है, और आप इसका भुगतान कैसे करेंगे. तो इस पूरी जानकारी के अवेयरनेस के साथ आप ये लोन लीजिए. When you avail a loan, you must utilize it only for the purpose for which you have availed. जिस उद्देश्य से आपने यह ऋण लिया है उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कीजिए. डोंट डाइवर्सिफाई द लोन अमाउंट. ऐसा मत करिए कि आपने कार खरीदने के लोन लिया और कार को बाहर आपने बेच दिया और आप उस लोन राशि का अन्य का उपयोग कर रहे हैं. ऐसा मत करिए, डाइवर्सिफाई करिए. जिस चीज़ के लिए लिया उसी के लिए उसका उपयोग कीजिए. यूटिलाइज द लोन फॉर अ प्रोडक्टिव इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी एंड रीपे द लोन फ्रॉम दिस इनकम. आप जो भी आप ऋण लें उससे किसी भी आमदनी हो ऐसे जगह उसका निवेश कीजिए, ऐसे जगह उसका ताकि जो आमदनी मिले उससे उस ऋण का भुगतान कर सके. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने मकान खरीदा है तो आपके किराए की बचत होगी, उससे आप EMI भर सकते हैं. अगर आपने कार खरीदी है तो आने जाने का खर्चा आपका बचेगा, ट्रांसपोर्ट कास्ट बचेगी, तो उसमें से आप ये लोन भर सकते हैं. लेकिन अगर आपने लोन लेकर ऐसे ही कि उड़ा दिए, अगर आप फॉरेन घूम कर आ गए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके, तो आप रीपे कैसा करेंगे ध्यान रखिए. अगर आपकी इनकम है उसमें से पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड नो कि यू शुड सफिशिएंट इनकम टू रीपे द लोन. Remember that banks do not give the loan for unlawful activities like smuggling, gambling, money laundering, speculation in stock, etc. So please do not borrow for this purpose. Do not use loan for these purposes. Once you have borrowed, then also you should have discipline. अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो उसके बाद में आपको अनुशासन का पालन करना है. क्या क्या अनुशासन का पालन करना है? व्हाट आर द डिसिप्लिन? इंश्योर दैट यू अवॉइड बाय द रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन. जो भी कंडीशन है, जो भी टर्म्स है उसका पालन करें. पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम इन फुल.
all the EMI will be paid in full, not in part, and try to automate the payment of installments. Automatically यार EMI आपके अकाउंट से कटती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, don't have to worry about that. If you have surplus funds deposit in loan account, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, आपको बोनस मिल गया, या आपने कोई चीज़ बेचकर पैसा इकट्ठा किया है, तो उसको लोन अकाउंट में जमा किया, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सेविंग. इट विल रिड्यूस योर इंटरेस्ट बर्डन. आपका ब्याज का जो भार है वो कम हो जाएगा. रीपे द हाई इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स अर्ली. जो ज़्यादा ब्याज वाले ऋण है उनको पहले चुकाने की कोशिश करें ताकि आपका इंटरेस्ट का जो भार है वो कम हो जाए. कंपाउंडिंग इफेक्ट इन लोन्स इज़ वेरी डेंजरस. जैसा मैंने पहले आपको भी बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रभाव है वो ऋण के स्थिति में बहुत ज़्यादा होता है. योर ड्यूज विल राइज टू एन अलार्मिंग लेवल इन शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय में आपकी जो देय राशि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि इतनी राशि अब मैं कहाँ से लाऊंगा. अगर जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट में देखा था, इफ यू इन्वेस्ट समवेयर इन 8%, इट मे टेक अराउंड 8 to 9 years to get doubled. But in case get done 3 to 4 years, because one thing is that loan rates are very high, interest rate is very high. Other thing is compounding is every month. In case of deposit, it is compounded every 3 months or maybe 1 year. But in case of loan, it is compounded every month. So try to remember that in case of loan, the compounding effect is very dangerous. रेगुलर पेमेंट ऑफ EMI will improve your credit score. आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, वो आपका इंप्रूव होता है अगर आप रीपेमेंट रेगुलर करेंगे तो. प्लीज रिमेंबर दैट क्रेडिट कार्ड इज ए बेस्ट बडी बट ए वर्स्ट प्रो. बहुत अच्छा दोस्त है क्रेडिट कार्ड, आपको कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा दुश्मन है ये, क्योंकि इफ यू डोंट पे द ड्यूज, योर ड्यूज विल बिकम हाई. पेइंग मिनिमम बैलेंस रेगुलरली ऑन क्रेडिट कार्ड इज द मिनिमम साइन दैट यू आर गेटिंग इनटू डेट ट्रेड. केवल मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं हर महीने तो निश्चित है कि आपको लोन के जाल में फंसने वाले हैं. तो ध्यान रखिए कि आप क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज है पूरा का पूरा पे करें. मिनिमम बैलेंस हर महीने पे करने की आदत न रखें, पर पूरा पेमेंट करने की आदत रखें. तो द लोन्स वी हैव नाउ वी कम ऑन द सिविल. सिविल के बारे में आपने सभी ने सुना होगा. एवरीबॉडी would have heard about the सिविल. सिविल इज अ क्रेडिट. I think this slide is not coming fully. Okay, now it is there. So CIBIL is a Credit Information Bureau India Limited. The full form है Credit Information Bureau India Limited. It is India's first credit information company. Now it is known as TransUnion CIBIL. It collects and maintains the records of an individual's payment pertaining to loans and credit cards. व्यक्तिगत लोगों के बारे में ये जानकारी रखती है, लोन और क्रेडिट कार्ड की. बिजनेस के बारे में नहीं रखती है. फॉर बिजनेस देयर आर डिफरेंट कंपनीज लाइक केयर एंड इकरा. This CIBIL is for individuals. Information collected by CIBIL is then used to evaluate your and approve your loan applications. Once you go to apply a loan in the bank, they will check your CIBIL score. So whatever information collected by CIBIL is used for generally credit score, which is used by the bank to approve your loan application. CIBIL tracks all your loan details and history of repayments of loans and credit cards. So CIBIL will track your loan details and keep your repayment history. Any irregularity, however small, is tracked and reported by CIBIL. छोटा से छोटा अगर कोई irregularity है वो रिपोर्ट किया जाएगा और इसके कारण आप What is CIBIL score? CIBIL score is a 3-digit number. CIBIL score is a 3-digit numeric summary of credit history. The value of credit score ranges from 300 to 900. 300 से 900 के बीच में एक 3 अंकों का नंबर है जिसको क्रेडिट स्कोर कहा जाता है. द क्लोजर योर स्कोर इज टू 900, द हायर द चांसेस ऑफ योर लोन गेटिंग अप्रूव्ड. 900 के पास जितना आपका स्कोर होगा उतना आपको लोन आसानी से मिल सकता है. 650 से लेकर 900 के बीच का क्रेडिट स्कोर बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है. बैंक इसे अच्छा मानती है और आपको आसानी से लोन मिल सकता है. यू कैन इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर बाय मेंटेनिंग गुड क्रेडिट हिस्ट्री. आप ये कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा आपको टिप्स है. Always pay your dues on time in full. Try to remember that if you repay regularly, your credit score will be better. If your balance is low, if you are using credit card or overdraft account, try to use the balance to a minimum level. No, don't use it highest level. एक अगर 50,000 का लिमिट है और पूरा 50,000 का आप उपयोग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके पास पैसे की कमी है, तो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा. मेंटेन ए हेल्दी मिक्स ऑफ क्रेडिट. अगर आपने कुछ लोन क्लीन लोन लिए हैं
अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं जैसे कि पर्सनल लोन, तो ट्राई टू टेक सम सिक्योर्ड लोन आल्सो like yes fixed deposit or again NSC, so that a healthy mix will be there. All the loans should not be unsecured, that way their credit score will be low. Apply for a new credit moderation. अगर आप नया लोन देने जाते हैं तो कृपया कम अमाउंट के लिए अप्लाई करें जितनी आवश्यकता है. बैंक इज रेडी टू गिव यू 10 लाख रुपीज, बट इफ योर रिक्वायरमेंट इज ओनली 8 lakh, try to apply for only 8 lakh rupees. Monitor your signed guaranteed and guaranteed. बहुत ध्यान रखने की बात है कि अगर आपने किसी अन्य के ऋण खाते में आपने अगर जमानत दी है और वो खाता अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है. सो ट्राई टू सी इफ यू आर ए गारंटर इन अकाउंट दैट अकाउंट आल्सो शुड बी रीपेड टाइमली. रिव्यू योर क्रेडिट हिस्ट्री वंस इन ईयर. साल में एक बार क्रेडिट हिस्ट्री का रिपोर्ट निकाल कर, सिविल रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए. अगर कोई गलती है तो सिविल को रिपोर्ट करिए, वो लोग इसमें सुधार कर सकते हैं. अब हम थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे. इंश्योरेंस इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड योर वेल्थ एंड योर एसेट्स. Insurance is an arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of a specified premium. इसमें हमें प्रीमियम राशि देना पड़ती है जिसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस का फायदा मिलता है. तो कई बार लोग पूछते हैं कि जो प्रीमियम हमने दिया हमें वापस मिलेगा क्या. तो प्रीमियम इज अ कॉस्ट टू टेक दिस बेनिफिट. सो दिस कॉस्ट कैन नॉट बी रिटर्न टू यू और यू कैन नॉट गेट बैक द कॉस्ट. इट इज अ प्रीमियम इज अ कॉस्ट फॉर टेकिंग द इंश्योरेंस. दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है, सामान्य बीमा भी कहा जाता है. लाइफ इंश्योरेंस अगेंस्ट योर लाइफ, so it is available only after the death of the insured person. During his lifetime he can get some benefit as a cash money back, which is only whatever he invested during the policy period he will get back as a money back. There are three type of actually life insurance schemes. Pure term plan like term insurance and whole life insurance. Term plans with investment like endowment insurance, unit insurance plan, money back insurance. In case of term plans with investment, in addition to premium, you pay certain amount extra, which is investment in different type of assets, and they will give you this return from this investment as a money back to you. Credit linked insurance plan is also very important, which is linked to your bank loan. 3 तरह के लोन इसमें कवर्ड होते हैं जनरली: हाउसिंग लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन. अगर ये लोन चालू है और उस दौरान अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को या उसके मतलब नॉमिनीज को वो पैसा भरना नहीं पड़ता है. दैट विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. इसका प्रीमियम जो है आपको लोन लेते तभी ले लिया जाता है. तो अगर आपने इस तरह का कोई लोन लिया है तो उसमें क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस कवर लेने का ध्यान रखें, तो ताकि अगर कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो लोन का पैसा आपके परिवार को भरना नहीं पड़ता है. इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस फॉर द मोटर ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, which is very important nowadays because cost of medicines and taking is very high. Hospital cost is very high. Fire and burglary and theft insurance, liability insurance, shop insurance and crop insurance. These are some of the non-life insurances. Life insurance क्या होता है? It is a financial protection. It protect your family to live the same standard of life. आप जिस तरह का जीवन स्तर आपका है, आप न होने पर या किसी भी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले भी उसी प्रकार का जीवन स्तर का निर्वाह कर सके, उसके लिए ये लायबिलिटीज. आपने जो लोन लिए है उसकी भरपाई भी अगर क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस कवर से हो जाए तो आपके परिवार को उस लोन की रकम नहीं भरनी पड़ेगी. बाय टर्म ऑफ ए गुड कवर एक्सपीरियंस पर्सन इन योर लाइफ. तो आपके जीवन में जितना जल्दी हो ये कवर ले लीजिए. इसमें भी वही है कि as your age goes up, the premium will go up. So if you take the insurance early, your premium will be less. Buy unit linked insurance plan as a retirement planning, so that ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा होता है. तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दिस वाज अबाउट इंश्योरेंस. नाउ सी अबाउट द प्रोटेक्टिव मनी. आपने जो पैसा जमा किया है ये बहुत मेहनत से किया है, वेरी हार्ड अर्न मनी, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ. Please see that nobody defrauds you and take back money from your account without your knowledge. So there are some precautions you have to take.
You regularly get the messages from RBI and other banks that don't share your financial details to anybody. Even then, people are sharing their credit card or debit card details, CVV details, ATM card and PIN number, OTP, net PIN password, UPI PIN. Please remember these details are not to be shared with anyone because these are not required except to withdraw the money from your account. So please do not share these details with anyone in any circumstances, in any pretext. वो आपको बहला फुसला कर कुछ भी बात करेंगे, बोलेंगे ऐसा करो, तुम्हारा एटीएम कार्ड का नंबर बता दो, तुम्हारा पिन बता दो। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या तुम्हारा एटीएम कार्ड का नंबर 4357 है ना, तो आप ही बोल देंगे कि नहीं 4357 नहीं है, मेरा तो 2345 है। तो प्लीज ट्राई remember they don't get trapped in such talks and never anyone. We are nowadays using UPI for sending money to everyone. So people may try to take your UPI pin and stop receiving money. बोलेंगे कि मुझे आपको कुछ पैसा भेजना है, ऐसा करो आपका UPI पिन मुझे बताओ। तो याद रखिए UPI पिन किसी को जानने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे उपयोग के लिए होता है। Your QR कोड रिसीव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई QR कोड भेजता है तो उसको भी स्कैन मत करिए, क्योंकि हो सकता है इट में स्कैन योर मोबाइल डेटा इन योर मोबाइल एंड फाइनेंशियल डेटा में भी लीक टू him. So try not to scan QR code received from a stranger. Beware of call. Banks will never ask for your account information. बैंक कभी भी आपसे ऐसी जानकारी नहीं मांगती है। अगर कोई आपको ऐसा कॉल या ईमेल आता है तो उसका कोई जवाब न दे। शेयरिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स कैन लीड टू फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर आप इस तरह की जानकारी शेयर कर देंगे, किसी को बता देंगे, तो हो सकता है आपके खाते से कुछ पैसा निकल जाए, आपके खाते से ट्रांसफर हो जाए और आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो भी हो जाए। तो ध्यान रखिए, ये सारी प्रिकॉशन आपको लेना है, बिकॉज नोबडी एल्स विल टेक केयर ऑफ योर मनी, इट इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड नेवर शेयर टू ट्राई टू शेयर एनी डिटेल्स विद एनीवन फॉर एनी रीजन। सो बीवेयर ऑफ फ्रॉड्स। कई तरह के फ्रॉड होते हैं बाजार में। आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड्स, बट आई एम हियर टू टेल यू व्हाट आर प्रिकॉशंस यू टेक। डोंट बी ल्यूर्ड बाय स्कीम्स प्रॉमिसिंग वेरी हाई रिटर्न्स। कभी कभी कुछ कंपनियां होती है जो आपको कहेगी कि हम आपको 16% ब्याज देंगे, 12% ब्याज देंगे। ध्यान रखिए कि बाजार में जो बैंक्स ब्याज देती है, म्यूचुअल फंड ब्याज मिलता है, उससे ज़्यादा ब्याज या ज़्यादा रिटर्न कोई कंपनी दे नहीं सकती है। इसलिए डोंट बी ल्यूर्ड बाय दैट। डोंट अप्लाई फॉर लोन्स फ्रॉम एंटिटीज ऑफरिंग लोन्स एट ए रेट मच लोअर देन द रेट चार्ज बाय द बैंक्स। बैंक से कम कीमत पर कोई ब्याज, इससे कम ब्याज पर कोई आपको लोन नहीं दे सकता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपको 2% में 3% में ब्याज दिलवा दूंगा, लोन दिलवा दूंगा, तो ध्यान रखिए दे विल जस्ट कलेक्ट द प्रोसेसिंग फी एंड वेनिश। आपकी जानकारी, आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपके बैंक अकाउंट को डिटेल ले लेंगे, चेक की जेरॉक्स कॉपी कलेक्ट कर लेंगे, प्रोसेसिंग फी आपसे ले लेंगे और उसके बाद में गायब हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आए। इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ SMS आर कमिंग फ्रॉम वेरियस फ्रॉडुलेंट सोर्सेज। So try to read your SMS carefully and watch out for the indicators mentioned there. पहला KYC के बारे में, आपने KYC आपका सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है तो आपको 1300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक लेने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए। प्लीज रिमेंबर कि KYC अपडेट करने से कभी आपको रिवार्ड नहीं मिल सकता है, और ये जो लिंक है वो भी फेक लगती है। फिर एक कंपनी बता रही है कि आपको फ्री के अंदर आपको 3,30,000 रुपये मिलने वाले हैं। नो कंपनी एवर ऑफर सच हाई अमाउंट्स ऑफ कैश फॉर फ्री। सो इसका लोगो लिंक भी आपको फेक लग रहा है, तो ऐसा ध्यान रखिए। नोट द क्वेश्चनेबल सेंडर ID एंड सी हाउ दे आर फेकिंग अर्जेंसी। वो लोग में कि केवल 2 ही दिन में आपका इंटरेस्ट रिफंड के IT रिफंड क्लेम करना है, तो ध्यान रखिए ऐसा कोई मैसेज कभी आता नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखने की बात है। तो लास्ट पॉइंट पे हम आने वाले हैं कि आपने जो सारी संपत्ति कमाई हुई है, वट एवर वेल्थ यू अर्न, यू टू पास ऑन दिस वेल्थ टू योर नेक्स्ट जनरेशन, योर फैमिली मेम्बर्स, योर नॉमिनीज, योर नियर एंड डियर बस। तो उसका स्मूथ ट्रांजिशन हो, इसके लिए यू शुड हैव प्रॉपर नॉमिनेशन एंड प्रॉपर विल। ए विल इज नॉट ए डेथ वारंट, इट इज अवर फाइनेंशियल बायोग्राफी। मेक ए विल सो दैट योर डियर वंस आल्सो एंजॉय फाइनेंशियल एंड सोशल वैल्यू। हमने विल बना दी, हमने वसीयत बना दी, इसका अर्थ नहीं है कि हम मरने वाले हैं। ये तो हमने इसलिए बनाया है ताकि आगे वाले समय में आपके जो परिवार वाले हैं उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इंश्योर नॉमिनेशंस इन ऑल इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डिमेट अकाउंट, जितने भी आपके खाते हैं सभी में नॉमिनेशन करें।
प्रॉपरली करें, विचार करके करें। इट इज़ अ थॉटफुल एक्सरसाइज। ध्यान रखिए कि मुझे किसे मेरे पैसा देना है, मुझे ये बचाई हुई राशि देना है। तो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है आप भी समझ सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अकेले हैं, अभी सिंगल है, तो विल नॉमिनेट योर पेरेंट्स। आपकी शादी हो जाएगी, आपको पत्नी को आपका नॉमिनी बनाएंगे। बच्चे हो जाने पर आप बच्चों को nominate करेंगे। बाद में हो सकता है यू कैन नॉमिनेट योर ग्रैंड चिल्ड्रन। So like that, it is a thoughtful exercise and it can changes from time to time. Make a soft copy and keep a hard copy file of your all the investment organized name wise. अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट कॉपी में रखिए, हार्ड कॉपी में उसको फाइल करके रखिए। बेस्ड ऑन द अबव डेटा मेक ए विल। इस प्रकार सारी जानकारी के आधार पर आप वसीयत बनाइए, जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। रिमेंबर, विल कैन ऑलवेज बी अपडेटेड लेटर ऑन। अगर आपने कोई नॉमिनेशन किया है, विल बनाई है, तो समय समय पर उसको जैसे परिस्थितियाँ बदलेगी आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमने आज के फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में जानकर, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए करता हूँ। Thank you all the persons for joining this session. We are now opening it for the question and answer session, and I will stop this screen sharing so that we have better connection. So I think I have done justice to the subject and it was very useful to all the people. Please come forward and have the questions whatever you have. So first of all, thank you for the very information that you have given us. There are some questions in a question answer back chat box. Yes. Dr. Vasanti Matthew, she is a HOD of Commerce Department. She is financial advisor and she is very keen regarding some questions they have already put it in the box. Now, sir, this is the first question. How to manage in current scenario spatial economic growth like bank deposit rate and GDP this time? Okay, very good question. She is very educated. Her question, I'll try to answer to her satisfaction. मैडम, करंट सिनेरियो जो है वो तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आर्थिक स्थिति कैसे आगे बदलेगी, लेकिन जितना हो सके अच्छा सुरक्षित एसेट्स जो है, मतलब सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक इंटरेस्ट अर्निंग का सवाल है, वी कैनॉट गारंटी बिकॉज नोबडी इज अर्निंग एनीथिंग, सो हु विल पे यू? इवन बैंक्स विल नॉट अर्न, सो हाउ विल दे पे? इवन शेयर मार्केट में अगर कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो उनका शेयर आगे नहीं बढ़ेगा। तो बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर मनी। अर्निंग की बात तो ठीक है, यू शुड प्रोटेक्ट योर मनी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और फिर भी जैसे है, अगर हम इच्छा करें कि सोने के भाव बढ़ते हैं तो सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या बढ़ने वाले हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि दुनिया छोटी हो जाए तो कोई प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं रहेगी। अगर सोने का भी डिमांड नहीं रहेगा तो आई कैनॉट से एनीथिंग फॉर फ्यूचर। और जनरली आपको यही है कि सिक्योर्ड एसेट में रखिए, बैंक डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, पब्लिक प्राइवेट फंड है, एनएससी है, केवीपी है, जो कि सिक्योर्ड है, मतलब इसमें सरकार की गारंटी है, तो आपको पैसा वापस मिलेगा। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कोई गलत नहीं है, बट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट व्हेन देयर इज अ रिस्क। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो जल्दी से वापस आ जाइए, फिर से जब आप अप जाने लगे तो इन्वेस्ट करिए। तो इस तरह से बैलेंस आपको बैलेंस रहिए, प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए। मतलब यही है कि अभी जो समय है ये मॉनिटर करने का ज्यादा है, मतलब इन्वेस्ट करके सो जाने का नहीं है, मतलब ये है। So that is the one thing. Now another question is also good question from her. How benefit is to use to avoid the habit of borrowing? ये तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है अगर आप बोरोइंग की हैबिट नहीं रखें, आपको जरूरत नहीं है तो लोन न ले। फिर भी ऐसा होता है कि हम हमारी बचत सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम थोड़ा लोन लेके उसको ईएमआई से रीपे करेंगे। दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेविंग। वन से बोरोइंग इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेविंग, बट आप मतलब समझ बूझकर इन्वेस्ट बोरो करें। जैसे इन्वेस्ट करते वैसे ही लोन लेते समय समझे कितना ब्याज लगने वाला है, मुझे कहाँ से ईएमआई देने वाली हूँ मैं या देने वाला हूँ मैं। तो इट इज अ गुड हैबिट। Not that you should not have a habit, but try to borrow whenever required, because if you withdraw your saving, then interest earning will not be there. So that's why you need to take a loan. like स्कूटर खरीदना है तो क्या बुरा है लोन लेके खरीद लिया? तो you want to buy a car, तो उसको लोन लेना ही पड़ता है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। But try not to borrow against for your spending in it. अगर घूमने फिरने जाना है तो लोन मत लीजिए, आपकी सेविंग है उसमें से घूमने फिरने जाइए। लास्ट वन क्वेश्चन इज अगेन, how will a personal loan affect my credit score? Personal loan is an unsecured loan, so your credit score will be affected highly. एक तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है,
so your EMI will be high. So it may happen that sometime you may not pay EMI timely. So also your credit score will be affected. So if your personal loan is there, try to pay as early as possible so that that will be not be there in your report. So personal loan will surely affect your credit score. Maybe I say adversely because it's an unsecured loan. Okay. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लाइक इंटरेस्ट फ्रॉड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में ये है कि जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है उसके अंदर ही आपको प्रोटेक्शन होता है। इन्वेस्टर के लिए तो कोई होता नहीं है, पर बैंक डिपॉजिट के ऊपर होता है कि योर डिपॉजिट इज गारंटीड बाय द DIGCC, यू माइट हैव हर्ड, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, विच इज कवर्स योर डिपॉजिट अप टू 5 लाख रुपीज। तो किसी बैंक में अगर 5 लाख रुपए का आपका डिपॉजिट है, अगर वो बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन देयर इज नो अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। Okay. Sir, Nihar Mehta asked one question. Please explain advantage SWP and Souvenir bond. Okay, SWP, I think it means systematic withdrawal plan. Yes, sir. So systematic withdrawal plan is good for people who are already retired and they have kept the money हायर डिपॉजिट से। मैंने अगर 50 लाख रुपए जमा कर दिए तो हर महीने में 25,000 रुपए इसमें से विड्रॉ कर रहा हूँ, तो 50 लाख के ऊपर तो ब्याज मिल रहा है, लेकिन 25,000 रुपए विड्रॉ हो गए तो अब उन 50 लाख और 75,000 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मतलब उसमें ये है कि मेरा पैसा भी जमा रहेगा, लेकिन मुझे जरूरत है उसमें विड्रॉ भी करता रहता हूँ। ये इट इज अ रिवर्स ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का रिवर्स है, जहाँ हम हर महीने पैसा बचाते हैं, यहाँ हम पैसा हर महीने निकालते हैं। ये अच्छा वैसे है, systematic withdrawal plan is also very good, very effective as per their scheme. So if you are having a large sum, you can go for that. अगर 10-20 लाख रुपए जमा है आपके पास, आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो आप इसके लिए इसमें जा सकते हैं। Okay. Sir, whenever you explained about your PPT, so there is a one thing, risk. Yes. You for 5 factors you have explained. This is the one is risk. So in a liquidity saving account, is the highest risk. Why? No, not risk. It is highest liquidity. Okay. Liquidity का मतलब आपको कभी भी पैसा वापस मिल सकता है। Okay. Risk का मतलब जोखिम। No, it is mentioned in risk high, so it's related with the liquidity. The liquidity form में it's a very नहीं, लिक्विडिटी में हाई नहीं बताया होगा, नहीं। लिक्विडिटी हाई मतलब इजीली आप हाईली लिक्विड है, कभी पैसे की जरूरत आप निकाल सकते हैं। ओके, लिक्विड का मतलब तरल। मतलब नहीं, liquidity is I know, but it is mentioned in the risk, so I have confused. तो मैं just regarding this question. And risk low है, liquidity high है। Okay. Sir, there is any difference between systematic investment plan and growth of SIP? No, growth SIP. It's the same thing, na? Both are same thing. Yeah, same thing. Both are same thing. See, there are different type of schemes. Okay. मतलब उसमें they come out with different type of scheme, like this investment related to this type of assets. तो उसमें कैपिटल ग्रोथ ज्यादा होगा, इसमें इनकम ज्यादा होगी। इनकम मतलब आप हर टाइम निकाल सकते हैं पैसा। सर, नाउ दैट सिचुएशन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल और कंपनीज की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है, तो इन दैट वे हमें किस टाइप के, एक्चुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद अस, तो फॉर द स्टूडेंट पर्पस विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स या विच टाइप ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दे विल टेक? ओके, लाइक म्यूचुअल फंड्स यू कैन गो फॉर बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड्स। कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ बैंक के द्वारा किए जाते होते हैं। तो वैसे तो मतलब आप सबका परफॉर्मेंस देख के आपको जज करना है। आई कैन नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट एनीबडी, बट स्टिल बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड्स आर बेटर बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द बैंक सपोर्ट। अदर थिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, so try to invest in such a scheme which are very secure kind of investment. ज़्यादा वोलेटाइल, ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग, ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग नहीं होना चाहिए। जैसे इंडेक्स बैंक फंड होता है, तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, इंडेक्स नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। तो यहाँ पर भी आपको मॉनिटर करना है कि ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है कि नहीं। फिर कुछ फंड ऐसे होते हैं जो डेट रिलेटेड होते हैं, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिटर्न कम होता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज में कम करते हैं, तो वहाँ इनकम कम होती है लेकिन पैसा सिक्योर रहता है। तो इनकम कम हो जाएगी ना, अगर रिस्क ज़्यादा लोगे तो इनकम ज़्यादा होगी, रिस्क कम लोगे तो इनकम कम होगी। तो वो आपको ध्यान रखना है।
और स्टूडेंट पर्पस आई थिंक लो रिस्क इज गुड, क्योंकि स्टूडेंट है। म्यूचुअल फंड के लिए, स्टूडेंट के लिए म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान, एनएससी, केवीपी, बैंक डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, these are all the suggested for the students. Once they get knowledge of share market, they can go for investing in shares also. Okay. I think I have done justice to all. Yeah sir. श्रुति सर, दीप्ति मैडम, बसंती मैडम भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं एज अ पैनलिस्ट, तो अगर मैडम भी अच्छा अभी लेफ्ट कर दिया मैडम ने। ओके सर, आप कुछ कहना चाहें? आई थिंक मैडम सारी चीजें आपने कवर कर ही ली हैं, और सर काफी बढ़िया सेशन आपका रहा है। Exactly. और मतलब नो डाउट हम लोग कई सारी चीजें जानते थे और कई सारी चीजें बिल्कुल नहीं जानते थे। कई सारी चीजें बिल्कुल नहीं जानते थे और इतना डीपली कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच सर, काफी सारी चीजें आपने कवर करी है एंटायर प्रेजेंटेशन में, और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बढ़िया लर्निंग है, क्योंकि अभी वो लोग एक स्टेज में है और बहुत जल्दी से बट ये है कि फ्यूचर में वो बहुत जल्दी पास आउट होंगे और दे स्टार्ट अर्निंग के लिए। यस, सो ये अवेयरनेस है। They can also, their parents, if their parents are doing any wrong thing or any mistake, they can also suggest them not to share their details with anyone like this. सब मतलब अवेयरनेस के लिए है, तो it is necessary to everyone. Yes sir, please go ahead sir. Yeah. नेहा माथुर मैडम भी हमारे साथ है। मैडम, आर यू देयर? हाँ, कुछ कहना है? जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, गुड आफ्टरनून मैम। जी अभिषेक जी, थैंक यू। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनोहर पुरानिक फॉर गिविंग अस हिज वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग हिज व्यूज विद अस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। थैंक यू मैम। And last but not the least, I am grateful to RNTU for its full support. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Thank you from me also to all the team members, all the coordinators and all the deans and HODs to give me this opportunity. I am looking forward for such more sessions in future also, and also please suggest to other colleges or other universities also they can hold. I am on LinkedIn, so generally I am contacting them, and thank Abhishek for contacting me and doing this event. So I think we are already late. Yes, so I request Dr. Deepti. Yes, I request Dr. Deepti Maheshwari ma'am for the vote of thanks. Thank you, Shruti sir. On the behalf of Rabindranath Tagore University, I extended my vote of thanks to Manohar sir for giving us a very valuable inputs regarding the financial awareness and financial planning. और सर ने बहुत अच्छे से बताया कि what is the SIP and mutual funds, how can you go for these all investment plans, और कौन कौन सी चीजें हैं। सर has already explained about the 5 factors which is very important whenever we will go for the investment, वो सर ने बहुत अच्छे से बताए। और म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट स्कोर जिसके सिबिल के बारे में जो सर ने आज बताया, दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, आई होप, और बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। सर ने ये भी बताया कि इन विच टाइप ऑफ फ्रॉड्स जो आजकल हो रहे हैं ऑनलाइन, उससे आप किस तरह से सेव रहें, क्योंकि रेगुलरली अगर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम पर हम ज्यादा जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड्स भी डे बाय डे काफी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, फॉर स्टूडेंट स्पेशली मैं बोलूंगी, क्योंकि आज के टाइम में सारे बच्चों के पास में बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स में पैसा होता है। जस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा उस पर क्लिक कर देता है या अपना पासवर्ड किसी को शेयर कर देता है तो उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा जा सकता है। तो सर ने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। इसके साथ साथ सर ने इंश्योरेंस के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर मान लीजिए आप इस तरह के नहीं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, मैं बिल्कुल मानूंगी कि इस एज में आप सब बच्चों को छोटी छोटी अर्निंग्स होती हैं, पॉकेट मनी मिलती है। हम अगर अभी से अपने फ्यूचर के लिए कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसे इंडिया के अंदर ये ट्रेडिशनल है कि हम लोग पहले ये सोचते हैं कि सेविंग करें और उसके बाद एक्सपेंस करें, तो वो चीज आज सर ने बहुत अच्छे से बताई। और दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स कि आप सब लोग भी छोटी छोटी सेविंग्स करके अभी जिस तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं या और लोग फेस कर रहे हैं, वो उससे बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह के प्लान्स इन फ्यूचर, मतलब आफ्टर 60 या 70 की एज में आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहते हैं।
तो प्लीज डू वन थिंग कि आप आज से ही जो जानकारी आपको मिली है उसको औरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन सर से चाहिए, सर ने पहले ही मुझसे पहले ही बोल दिया कि वो ही इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम सर से भी सजेशन ले सकते हैं, इन फ्यूचर जा सकते हैं। सर आई एम थैंकफुल, हार्टली थैंकफुल टू यू। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताया। इन फ्यूचर डेफिनेटली थ्रू श्रुति सर वी विल कनेक्ट वंस अगेन एंड ट्राई टू, अभी एक टॉपिक जो मेरे माइंड में आया क्लोजिंग के टाइम पर कि हाउ वी कैन परचेज एंड सेल द शेयर्स। लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, दिस इज फॉर फैकल्टी मेंबर्स सर होना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि टीचर्स भी जो हैं वो भी उसी सिचुएशंस में हैं, तो सिप वगैरह के बारे में तो काफी अच्छी नॉलेज रखते भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैसे हम बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी, मतलब हम डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं, कैसे हम अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं। श्रुति सर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सर का इसके ऊपर एक नेक्स्ट वेबिनार हम अपने टीचर्स, अपने स्कॉलर्स के लिए रख सकते हैं, जिससे कि उनको भी अवेयरनेस मिले और वो भी जो अभी सिचुएशन चल रही है क्रंच की, उससे उभर पाए। थैंकफुल टू ऑल RNTU टीम, दीपक सर एंड वैशाली मैम एंड नेहा मैम, प्रीति मैम, थैंक्स टू ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, लास्ट तक आप सब लोग ज्वाइन रहे। बिफोर लीविंग दिस वेबिनार, फीडबैक लिंक आपका चैट बॉक्स में डला है, प्लीज फिल द फीडबैक लिंक, जिससे हमें ये पता लगे कि कितने बच्चों ने अवेयरनेस के साथ में इसको सुना, और फ्यूचर में हम इसी तरह के वेबिनार कंडक्ट करते रहें सर के साथ में। थैंक यू ICICI Foundation for give me us this opportunity to organize this type of webinar in our university. Thank you so much to all. Thank you. Thank you, Deepti. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Deepti Thank you, ma'am. Puranik sir. Thank you, Manohar sir. Yes. Thank you everyone. Thank you, all of you. Thank you. Shall we leave, sir? Yes. Yes, ma'am. And please, participant, please share your feedback before leaving the meeting. Panelists, like if you want, you can leave. Thank you. Okay. Thank you. Thank you all. Abhishek sir, I can also leave. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you, Abhishek.